Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our fourth lecture on one compartment model equation and one compartment open model and IV bolus administration of the drug. And now we are going to discuss one compartment model equation in terms of clearance and volume of distribution. Already हम इस पे काफ़ी बात कर चुके हैं, but we will elaborate it more. Okay, so as we know that one compartment model equation provide fundamental framework for understanding of drug behavior in the body, and the equation in this chapter, the clearance and the volume of distribution, which is actually CLT upon VD for the elimination rate constant, yani CLT upon VD is equal to K. This transformation create a more clinically relevant expression that directly relate to physiologic parameters. ये equation जो होगी transform हो सकती है और भी further equations में. The original equation Cp is equal to Cp naught exponent minus Kt and which can become यानी k की जगह वही k CLT upon Vd, Cp is equal to Cp naught exponent minus CLT upon Vd, यानी यही है कि k की जगह CLT upon Vd लिख दिया into t, ये t वैसे ही आ गया. Where Cp represents plasma concentration at time t, यानी ये Cp क्या है at time t की concentration, and Cp naught is the initial plasma concentration, and this reformulation is particularly valuable in clinical pharmacy practice as it allows the practitioners to determine the clearance and volume of distribution directly from the patient. यानी ये इक्वेशन हमें हेल्प आउट कर सकती है अगर हमें Cp नॉट पता है और Cp पता है, तो फिर हम इस और किसी भी और उस टाइम की Cp पता है तो हम उससे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस मालूम कर सकते हैं. The clearance concept can be applied to biologic system in physiologic modeling system without requiring theoretical compartment assumption. तो यानी इसमें जो है वो theoretical compartment assumption की भी हमें इस इक्वेशन में ज़रूरत नहीं है. However, एक critical limitation क्या है? Exist when only one sample is available. क्योंकि इसमें देखें आपको दो sample चाहिए, एक initial plasma concentration और एक time t की plasma concentration. If Cp is known at only one time point t after a given dose, the equation cannot solve unambiguously because two unknown parameters like CLT, CL and VD must be determined simultaneously. This mathematical constraint necessitates multiple sampling points for accurate parameter estimation in clinical practice. लिहाजा इसमें ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो है डिफरेंट टाइम की CP इनिशियल प्लाज्मा कंसनट्रेशन हो और डिफरेंट टाइम की CP मौजूद हो, और ताकि हम वो टाइम रख सकें, CP रखें, इनिशियल प्लाज्मा कंसनट्रेशन रखें, तो उससे फिर ये CL अपॉन VD हम मालूम कर सकते होंगे डायरेक्टली पेशेंट के डेटा से. Now when we move to the next slide, we see understanding drug clearance from eliminating tissues. Clearance represents a fundamental pharmacokinetic parameter that can be applied to any organ involved in drug elimination from the body. पिछली स्लाइड्स में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि वैसे तो मेजर ऑर्गन जो है वो किडनी और लिवर है, लेकिन ये कि हर वो ऑर्गन जो किसी ना किसी फॉर्म में ड्रग एलिमिनेशन के लिए इन्वॉल्व है उसको हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि वहाँ से भी क्लियरेंस हो रही है और उसको भी अकाउंटेबल कर सकते हैं कि वहाँ से कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग क्लियर हो रही है. This concept provides a comprehensive framework for understanding how the body processes and remove pharmaceutical compounds through various physiological pathways. तो इससे हमें अगर हमें ये फ्रेमवर्क हमें कम्प्लीटली पता हो तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि किस तरीके से बॉडी मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ज़रिए फार्मास्यूटिकल कंपाउंड यानी ड्रग को बॉडी से रिमूव करती है, नॉट फ्रॉम वन फिजियोलॉजिक पाथवे बट फ्रॉम डिफरेंट फिजियोलॉजिक पाथवेज. As long as the first order elimination processes are involved, total clearance यानी CLT represents the sum of clearance from drug eliminating organ, and this additional property is expressed mathematically as CLT is equal to CLR and CLNR, यानी renal clearance and CLNR यानी non-renal clearance. Okay, where यहाँ पे CLR क्या represents कर रहा है renal clearance of drug का, means clearance through the kidney, and CLNR represents the non-renal clearance through other organ. In most clinical scenarios, non-renal clearance assumed to be due primarily to hepatic clearance, यानी ज़्यादातर ये नॉन रीनल क्लियरेंस या मेजर जो नॉन रीनल क्लियरेंस है वो कहाँ से हो रही होती है, लिवर से, मीन्स हेपेटिक क्लियरेंस, यानी CLNR की जगह हम CLHP लिख सकते हैं. सो इन द एब्सेंस ऑफ अदर सिग्निफिकेंट एलिमिनेशन पाथवे सच एज पल्मोनरी या बिलियरी या और कोई या स्किन,
इन दिस सिचुएशन दिस रिलेशन कैन बी सिंप्लीफाइड, यानी ये CLT इज इक्वल टू CLR यानी रीनल क्लियरेंस प्लस CLH यानी हेपेटिक क्लियरेंस, यानी टोटल क्लियरेंस ड्रग की दरअसल सम है रीनल क्लियरेंस का और हेपेटिक क्लियरेंस का। तो उस सिचुएशन में अगर ड्रग की क्लियरेंस सिर्फ इन दो ऑर्गन से हो रही है। सो अंडरस्टैंडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑर्गन system to total drug clearance is essential for dose adjustment in patient with organ dysfunction such as renal और hepatic impairment। तो ये जो क्लियरेंस है किसी भी ड्रग की कि उसकी रीनल से कितनी हो रही है और हेपेटिक से कितनी हो रही है, ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है, यानी रीनल क्लियरेंस का कितना कंट्रीब्यूशन है ड्रग को बॉडी से रिमूव करने में और हेपेटिक क्लियरेंस का कितना रोल है जो बॉडी से ड्रग को रिमूव करने में। ये इसलिए एसेंशियल है कि अगर पेशेंट को कोई किडनी डिजीज़ है यानी रीनल इम्पेयरमेंट है या हेपेटिक डिजीज़ है या हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, तो उस सिचुएशन में इसमें से किडनी या अगर लिवर सही काम नहीं कर रहा तो फिर उस वक्त डोज एडजस्टमेंट हमें किस तरीके से करनी होगी अगर ये किडनी या लिवर इसके ऑर्गन की डिसफंक्शन हो जाएगी। Clinician must consider these pathway when prescribing medication to ensure safe and effective therapy। यानी अगर किसी पेशेंट की क्लियरेंस रीनल है या हेपेटिक है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है और अगर वो मेजर कंट्रीब्यूशन है तो उसमें अगर वो ऑर्गन सही काम नहीं कर रहा लाइक रीनल या हेपेटिक, तो उस वक्त जो है वो क्लिनिशियन शुड कंसिडर ऑल दिस फैक्टर और फिर मेडिकेशन जब भी प्रेस्क्राइब करे तो ये अंडर कंसिडरेशन रखे कि उसकी डोज इतनी हो कि जो मेक श्योर करे कि ड्रग दी जा रही जो थेरेप्यूटिक डोज दी जा रही है वो सेफ भी हो और इफेक्टिव भी हो। CLT जैसा कि हमने कहा कि सम ऑफ ऑल एलिमिनेशन पाथवे यानी टोटल क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस CLR ड्रग एलिमिनेटिंग थ्रू द किडनी फिल्ट्रेशन सिक्रीशन एंड हेपेटिक क्लियरेंस CLH ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन वाया द लिवर। नाउ डिफाइनिंग क्लियरेंस इन क्लिनिकल टर्म। Clearance can be alternatively defined as the rate of drug elimination divided by the plasma drug concentration, means के drug elimination K upon CP, rate of drug elimination divided by plasma concentration. This definition provides a practical and intuitive understanding of the concept. Clearance represents the volume of plasma containing drug that is eliminated पर यूनिट टाइम के। हमने ये बात पहले की थी किडनी से में प्लाज्मा ही तो है जो ड्रग को लेकर जाता है और फिर वो जब वहाँ से फिल्टर होता है तो वो पर यूनिट टाइम यानी कितने ml पर मिनट जो है वो वहाँ से फिल्टर हो जाता है। दिस क्लिनिकल डेफिनेशन इज मैथमेटिकली इक्वलेंट टू द प्रीवियस ऑर्गन बेस्ड डेफिनेशन एंड ऑफर्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग क्लियरेंस बेस्ड ऑन प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन डेटा, यानी प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज CLT इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज CLT यानी एलिमिनेशन रेट क्या हुआ DDE बाई DT अपॉन CP। ठीक है ना, क्योंकि यानी ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय CP, तो ये भी CLT को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड यूनिट्स दिस बिकम माइक्रोग्राम पर मिनट या माइक्रोग्राम पर ml, तो ये माइक्रोग्राम पर मिनट या माइक्रोग्राम पर ml होगा। और अगर देखें यहाँ से माइक्रोग्राम कैंसिल हो गया, ये ml ऊपर आ गया, फाइनल यूनिट क्या निकली ml पर यूनिट मिनट यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो कि CLT की यूनिट होती है कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वेयर DE रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड एंड DDE बाई DT रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। दिस यूनिट एक्सप्रेशन milliliter per minute or ml per minute provide an intuitive measure of how much plasma volume is cleared of drug per unit time। तो इससे जो है वो हमें मालूम हो जाएगा कि DDE बाई DT अपॉन CP से कि पर मिनट में या पर यूनिट टाइम में कितनी ड्रग प्लाज्मा से क्लियर हो रही है। दिस प्रैक्टिकल डेफिनेशन अलाउज क्लिनिशियन एंड रिसर्चर टू कैलकुलेट क्लियरेंस डायरेक्टली फ्रॉम द measured plasma concentration and known elimination rate। तो इस ये जो कैलकुलेशन है ये आसान हो जाएगी अगर हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और नोन एलिमिनेशन रेट है, मेकिंग इट एन इनवैल्यूएबल टूल इन थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एंड फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़। यानी ये एक बहुत वैल्यूएबल टूल होगा, यानी ईजी हो जाएगी हमारी ड्रग मॉनिटरिंग और फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। द एबिलिटी टू क्वान्टिफाई क्लियरेंस इन वॉल्यूमेट्रिक terms per unit time facilitate communication among healthcare professional and enable precise dosing
एडजस्टमेंट या डोज एडजस्टमेंट जो होगी, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होगी वॉल्यूम में, जो यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो हम क्लियरेंस बता रहे हैं, तो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए इजी भी होगा, अंडरस्टैंड करना भी होगा, और प्रिसीजन भी हो जाएगा डोज में, यानी एक्यूरेसी और प्रिसीजन भी आ जाएगा, जिसमें ड्रग की टॉक्सिसिटी के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे. Now the relationship between elimination rate and clearance. Now rearranging the clearance equation reveal a fundamental relationship, like the rate of drug elimination dDE by dt equals to plasma drug concentration multiplied by CLT, यानी ये CLT into CP. This mathematical relationship demonstrates that clearance is constant for a specific drug in given patient, representing the slope of line obtained when plotting dDE by dt versus slope versus CP. यानी अगर ड्रग का एलिमिनेशन रेट के डिफरेंट टाइम पे जो ड्रग एलिमिनेट हो रही है उसका मेरे पास रीडिंग मौजूद हो, और उसी टाइम पे CP कितनी थी वो मौजूद हो, यानी ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम का टाइम और CP कितनी थी, मैं इसको प्लॉट करता हूँ दोनों के ग्राफ में. तो यानी इसको मैं एक्स एक्सिस पे लूँगा, वाई एक्सिस पे लूँगा, और इसको CP को एक्स एक्सिस पे लूँगा. तो मैं अगर इनके दरमियान प्लॉट करता हूँ तो एक स्लोप मुझे मिलता है जो मुझे बता रहा होगा स्लोप ऑफ द लाइन ऑब्टेन, जिससे मुझे ये इसकी कैलकुलेशन मिल सकती है, यानी क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन मालूम हो सकती है. दिस लीनियर रिलेशनशिप इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज इज कन्फर्म दैट द ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. यानी अगर ये लाइन सीधी बन रही है स्ट्रेट लाइन, तो ये भी बता रहा है कि ड्रग जो फॉलो कर रही है एलिमिनेशन के लिए वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है. क्लियरेंस रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि क्लियरेंस जो होता है यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कांस्टेंट रहता है, हाँ कंसंट्रेशन उसमें चेंज हो सकती है. द कॉन्स्टेंसी ऑफ क्लियरेंस is a defining characteristic of first order elimination and distinguishing it from capacity limited और saturable elimination process. यानी यहाँ पर जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है जो कि कांस्टेंट होता है वो इसको डिफ्रेंशिएट करता है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन को फ्रॉम ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, या जिसको हम कैपेसिटी लिमिटेड या सैचुरेबल एलिमिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं. फॉर ड्रग्स दैट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग इन द बॉडी. ठीक है ना, यानी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा कि कितना अमाउंट ड्रग में का अभी बॉडी में मौजूद है. दिस रिलेशनशिप एक्सप्रेस एज डी बाई डी टी इज इक्वल टू के डी बी, एंड डी बी की जगह सी पी वी डी, वेयर के इज द एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट, डी बी इज द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी, एंड वी डी इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. By substituting this elimination rate constant expression and solving for total clearance, we obtain the elegant relationship CLT is equal to KVD, जो हम पहले कर चुके हैं, which directly connect clearance to the elimination rate constant and volume of distribution. यानी K और VD को मल्टीप्लाई करें तो उस ड्रग की क्लियरेंस मिल सकती है. यहाँ पर इस इक्वेशन में पहले भी हम बात कर चुके हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग लेवल इन ब्लड इज CP, क्लियरेंस कांस्टेंट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, एलिमिनेशन रेट ड्रग रिमूव पर यूनिट टाइम DDE by dt. Now non-compartmental method of clearance calculation. Now non-compartmental method for clearance calculation. For some drugs the elimination rate processes are not well understood. यानी कुछ ड्रग्स हैं जिनकी एलिमिनेशन रेट प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, उसके पैरामीटर्स नोन नहीं है, एंड फ्यू और नो मॉडल एजम्पशंस आर डिज़ायरेबल. यानी जिनके पे हम कोई भी मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करने पे या एजम्पशन अप्लाई करने पे में हम जो है वो क्लियर नहीं होते कि हम इस पर कौन सा मॉडल अप्लाई करें. इन दिस सिचुएशन ए नॉन कंपार्टमेंटल मेथड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू कैलकुलेट certain pharmacokinetic parameters such as clearance. This model independent methodology offers a significant advantage when the underlying pharmacokinetic behavior is complex or uncertain. यानी ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं इसके एलिमिनेशन रेट के वो ज़्यादा क्लियर नहीं होते, तो फिर हम नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस यानी नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल या मैथडोलॉजी अप्लाई करते हैं, जो कि जिसका दूसरा नाम है द मॉडल इंडिपेंडेंट मैथडोलॉजी. इसमें हम क्या करेंगे, दिस नॉन कंपार्टमेंटल अप्रोच अलाउज क्लियरेंस टू बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व यूजिंग द इक्वेशन CLT is equal to dose upon AUC, where D represents the dose administered and AUC represents the area under the plasma concentration time curve from time 0 to infinity.
This method require no assumption about the number of compartments or specific distribution characteristics of the drug. इसकी काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे जब इस चैप्टर पर आएंगे नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस पे, लेकिन बहरहाल ये भी एक तरीका है CLT इज इक्वल टू डोज अपॉन AUC, इससे भी हम ड्रग की क्लियरेंस मालूम कर सकते हैं, ख़ासतौर से उन ड्रग की जिनकी हमें क्लियरेंस पैटर्न के बारे में या एलिमिनेशन के बारे में ज़्यादा क्लियर मालूमात या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज़्यादा वाज़ेह मालूमात नहीं है. द area under the curve or AUC represents the total drug exposure over time and can be calculated using the trapezoidal rule or other numerical integration method. तो ये trapezoidal rule या numerical integration method हम बाद में calculation में करेंगे. This approach is particularly valuable in clinical pharmacokinetic studies and bioequivalence assessment. तो ये AUC जो है वो कैलकुलेट किया जाता है मुख्तलिफ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ में भी और बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ में भी, where model independent parameters are preferred and the non-compartmental method provide robust estimate of clearance, यानी इसमें robustness भी है clearance के हवाले से, that are less dependent on sampling schedule and model assumption and making it a gold standard in many regulatory and clinical application. यानी इसको एक स्टैंडर्ड के तौर पर कंसिडर किया जाता है क्लियरेंस कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें डोज अपॉन AUC से ड्रग की क्लियरेंस मालूम की जाती है. Now when we move to the next slide, the first order elimination kinetics. पहले भी हम इस पे काफ़ी बात कर चुके हैं. Now we will talk about it again in more detail. First order elimination process represents the most common type of drug elimination kinetic, where the rate of drug elimination is directly proportional to the amount of drug remaining in the body. ठीक है, इस डेफिनेशन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं. फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादातर ड्रग फॉलो करती हैं एलिमिनेशन, और इसमें जो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है वो डिपेंड करता है ड्रग की कंसंट्रेशन या अमाउंट रिमेनिंग इन द बॉडी क्या है. ज़्यादा अमाउंट होगा तो ज़्यादा तेज़ी से एलिमिनेट होगा, और कम अमाउंट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा जो है वो तेज़ी से एलिमिनेट होगा, और अगर अमाउंट कम हो जाएगा तो फिर ये एलिमिनेशन रेट भी स्लो डाउन हो जाएगा. दिस लीनियर रिलेशनशिप, तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप बन रही है, यानी जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है तो बॉडी में ड्रग का, तो एलिमिनेशन रेट भी बढ़ रहा है. जैसे जैसे अमाउंट कम हो रहा है तो उसी तरीके से एलिमिनेशन रेट भी कम हो रहा है. तो इसी वजह से इसको हम कह रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप. मीन्स दैट ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम रिगार्डलेस of the absolute amount present. The mathematical expression dd by dt is equal to kdb captures this relationship, where k क्या है, elimination rate constant, and db is the amount of a drug in the body. This proportional relationship results in exponential decay of plasma concentration over time and producing characteristic straight line when plotting the on the Sabilog. यानी अगर इसमें हम ये dd by dt वर्सेस टाइम प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन उसमें आ जाएगी. The elimination rate constant k is related to half life of the drug according to equation, and half life इसकी फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, t half, जीरो ऑर्डर की क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है t half is equal to 0.693 by k. Means providing a clinically intuitive measure of how quickly drug is eliminated. After half life 50% of drug remain and 50% eliminated, and after two half lives 25% remaining and 75% eliminated. तो यानी इसका मतलब है कि अगर पहली हाफ लाइफ में ड्रग अगर आपने 100 मिलीग्राम दी थी, तो पहली हाफ लाइफ में ड्रग जो होगी वो बॉडी में 100 मिलीग्राम से कम होकर 50 मिलीग्राम हो जाएगी. दूसरी हाफ लाइफ ड्रग की गुजरने के बाद वो फिर 50 से 25 मिलीग्राम हो जाएगी. तीसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद फिर वो 25 मिलीग्राम से 12.5 मिलीग्राम हो जाएगी. चौथी हाफ लाइफ गुजरने के बाद फिर वो 12.5 मिलीग्राम से कम होके 6.25 मिलीग्राम हो जाएगी, और इसी तरीके से ये उसकी हाफ होते होते कम होती जाएगी, यहाँ तक कि कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगी. उस कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए ड्रग को 7 to 10 हाफ लाइफ्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है. अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स simplify dose calculation and prediction of drug accumulation during multiple dosing. Because clearance remains constant across the therapeutic concentration range, so doubling the dose double the steady state concentration. यानी ड्रग की स्टेडी स्टेट कंसर्न यानी जो जिस पे एवरेज कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है अगर ड्रग का जो होगा वो आप डोज डबल करते हैं. द प्रिडिक्टेबल बिहेवियर कंट्रास्ट विद जीरो ऑर्डर और मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स. जबकि ऐसा जो होगा इसमें प्रिडिक्शन होगी कि डबल दो डोज हो जाएगी तो क्या होगा, कि स्टेडी स्टेट जब डबल हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि ज़ीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता.
वेयर एलिमिनेशन प्रोसेस बिकम सैचुरेटेड एट हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी। यानी अगर आप, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं ना कि अगर आप डबल द डोज करते हैं तो स्टेडी स्टेट भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाएगी, अगर आप जीरो ऑर्डर में डोज को डबल करेंगे तो जो कंसंट्रेशन होगी वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। सो मोस्ट ड्रग एग्जिबिट फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन एट थेरेप्यूटिक डोजेज, दो सम में ट्रांजिशन टू कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक और टॉक्सिक कंसंट्रेशन। वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर ड्रग तो जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, यानी डबल द डोज डबल द कंसंट्रेशन, ट्रिपल द डोज ट्रिपल द कंसंट्रेशन। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जब हम उनकी ड्रग की डोज बढ़ाते हैं तो वो फिर फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, यानी उसको हम कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक कहते हैं, जिस पर ड्रग की कंसंट्रेशन टॉक्सिक हो जाती है। यानी आप डबल डोज करेंगे तो कंसंट्रेशन डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। सो अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन काइनेटिक इज असेंशियल फॉर रैशनल डोज सिलेक्शन। लाइक इनिशियल वही 100% ड्रग, फर्स्ट हाफ लाइफ में 50% हो गई, सेकेंड हाफ लाइफ में 25%, थर्ड हाफ लाइफ में फिर 12.5%। इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल डीके पैटर्न इन फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ड्रग डोजिंग एंड कैलकुलेशन। और इस तरीके से तकरीबन 7 to 10 हाफ लाइफ में ये ड्रग जो होगी जो आपने दी थी कंप्लीटली बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। नाउ द कांस्टेंट नेचर ऑफ क्लियरेंस, ए फंडामेंटल principle of first order pharmacokinetic is that clearance remains constant for a specific drug in given patient independent of plasma drug concentration, क्योंकि हमने बात की थी कि इसमें वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है जो कि फिक्स होता है। दिस कॉन्स्टेंसी इज व्हाट डिफाइंड फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन के लिहाज से को वेल डिफाइन करती है, क्योंकि एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम सैचुरेबल और कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेसेस, यानी इसमें ये जीरो ऑर्डर जो है सैचुरेबल वाला उससे डिफरेंट होती है। द रिलेशनशिप CLT is equal to KVD demonstrate that the clearance is product of two constant, यानी clearance जो है वो दो constant का की मल्टीप्लिकेशन है, यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट K और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज क्लियरेंस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगी, द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ड्रग का एलिमिनेशन रेट बढ़ जाएगा जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगी। व्हेन कंसंट्रेशन डबल द एलिमिनेशन रेट डबल, मेंटेनिंग द सेम क्लियरेंस वैल्यू, लेकिन क्लियरेंस की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम सेम रहेगा। दिस प्रॉपर्टी अलाउज क्लिनिशियन टू प्रिडिक्ट ड्रग बिहेवियर अक्रॉस रेंज ऑफ डोजेस कंसंट्रेशन एंड फैसिलिटेट डोजिंग एडजस्टमेंट एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो यानी ये क्लिनिशियन के लिए हेल्पफुल होगा ताकि वो डोज एंड कंसंट्रेशन की रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकें और डोज एडजस्टमेंट कर सकें। दी कॉन्स्टेंसी ऑफ क्लियरेंस हैज़ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एप्लीकेशन, यानी ये जो इसके लीटर पर आवर या ml पर मिनट जो है उसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोजिंग रेट, मीन्स अलाउइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड डोज एडजस्टमेंट टू अचीव द टारगेट कंसंट्रेशन। टारगेट कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जो डिज़ायरेबल कंसंट्रेशन है, जिस पे हम ये कह रहे हैं कि उस ड्रग का इफेक्ट आ जाएगा। तो उसके लिए ये क्लियरेंस अगर हमें मालूम होगी तो हम उसके हिसाब से डोज एडजस्ट कर देंगे कि हमें इतनी टारगेट कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए इस डोजिंग रेट से ड्रग को देना पड़ेगा या ये डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। दिस लीनियर रिलेशनशिप सिंप्लीफाइज द ड्रग मॉनिटरिंग एंड डोज इंडिविजुअलाइजेशन। तो इस ये लीनियर रिलेशनशिप हमें सिंप्लीफाई करके दे रही है कि हम आसानी से ड्रग मॉनिटरिंग भी कर सकें और किसी इंडिविजुअल पेशेंट में डोज भी डिसाइड कर सकें। हाउएवर क्लिनिशियन मस्ट रिमेंबर that clearance can change with alteration in physiologic functions such as declining in renal function or drug interaction that inhibit metabolizing enzyme। लेकिन क्लिनिशियन ये बात हमेशा अंडर कंसिडरेशन रखे कि क्लियरेंस चेंज हो सकती है किस सिचुएशन में, अगर कोई बॉडी के फिजियोलॉजिक फंक्शन में चेंज आ जाए। लाइक फॉर एग्जांपल किडनी फंक्शन पहले नॉर्मल था, अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जब डिक्लाइन होगा तो ड्रग की क्लियरेंस कम होना शुरू हो जाएगी और फिर अब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी और उस सूरत में ड्रग की टॉक्सिसिटी आ सकती है। इसी तरीके से अगर मल्टीपल ड्रग पेशेंट ले रहा है और एक ड्रग ने मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को कंज्यूम कर लिया और दूसरी ड्रग अब मेटाबोलाइज नहीं हो रही तो वह एलिमिनेट भी नहीं हो रही, तो फिर उस सूरत में जो होगा ये फिर ड्रग इंटरेक्शन होगा और एक ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है। इसी वजह से रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रीअसेसमेंट आर एसेंशियल टू एंश्योर क्लियरेंस एग्जाम्पशन रिमेन वैलिड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ थेरेपी। लिहाजा इसी वजह से पेशेंट की असेसमेंट और मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करना ज़रूरी है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स इन
in clinical practice or pharmacy practice. The integration of pharmacokinetic principles into clinical practice represents a cornerstone of evidence-based medicine and rational drug therapy. यानी अगर आप फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स को क्लिनिकल प्रैक्टिस पे अप्लाई करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड मेडिसिन का और रैशनल ड्रग थेरेपी का. अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट सच एज क्लियरेंस यानी ड्रग की क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप enables healthcare provider to make informed decision about drug selection. अगर यानी आपको इसकी इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे अबाउट द ड्रग सिलेक्शन, अबाउट द ड्रग डोजिंग एंड ऑल्सो ड्रग मॉनिटरिंग. These principles apply across all therapeutic areas and patient population from neonatal intensive care to geriatric मेडिसिन. यानी ये प्रिंसिपल जो होंगे फार्माकोकाइनेटिक के हर तरह की जो थेरेप्यूटिक एरिया वहाँ पर अप्लाई हो रहे होंगे, चाहे वो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर हो यानी बच्चों का जो है वो यूनिट हो, आईसीयू हो, या जीरियाट्रिक ओल्ड एज वालों की मेडिसिन हो. सो इन क्रिटिकल केयर सेटिंग ये लाइक आईसीयू में वेयर पेशेंट ऑफन हैव रैपिडली चेंजिंग फिजियोलॉजिक स्टेटस एंड मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन. यानी आईसीयू में तो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका किडनी फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हार्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, लिवर भी सही काम नहीं कर रहा. सो फार्माकोकाइनेटिक नॉलेज बिकम्स इवन मोर क्रूशियल. यहाँ पे तो फिर फार्माकोकाइनेटिक की नॉलेज और ज़्यादा क्रूशियल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Altered clearance due to renal or hepatic impairment या changes in volume of distribution from fluid shift to altered protein binding यानी volume of distribution change हो रहा है, protein binding जो है प्रोटीन की क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उससे प्रोटीन बाइंडिंग में फ़र्क आ रहा है, और ड्रग इंटरेक्शन ड्यू टू पॉलीफार्मेसी ऑल इम्पैक्ट ड्रग एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स. इन दिस सिचुएशन क्लिनिशियंस मस्ट कंटिन्यूअसली रीअसेस फार्माकोकाइनेटिक assumption एंड एडजस्ट थेरेपी अकॉर्डिंगली. यानी ये वो जगह है जहाँ पे फार्मासिस्ट की एक जो है वो एक पोजीशन है जहाँ पे फार्मासिस्ट अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर सकता है और ये प्रोवाइड कर सकता है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर टीम का कि वो पेशेंट की जान बचाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए और उसको ठीक करने में अपना किस तरह से रोल प्ले कर सकता है. लेकिन इस सब के लिए ये ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट और इसकी नॉलेज साउंड होनी चाहिए. The one compartment model, while simplified, provides a practical framework for understanding drug behavior in most clinical situation. तो वन कंपार्टमेंट मॉडल एक सिंप्लीफाइड वे है, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ड्रग का बिहेवियर क्लिनिकल सिचुएशन में क्या होगा. द इक्वेशन रिलेशन रिलेटिंग क्लियरेंस की यानी इक्वेशन जो चाहे वो क्लियरेंस की हो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हो या एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की हो, अलाउ क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन ओवर टाइम. तो उससे हमें एक क्वांटिटेटिव वैल्यू मिलती है कि ड्रग कंसंट्रेशन ओवर द टाइम क्या है ब्लड में. When combined the knowledge of therapeutic and toxic concentration ranges, these prediction guide dose selection and adjustment. और अगर हम इन तमाम नॉलेज को कंबाइन करें तो ये हमें हेल्प आउट करती है और गाइड करती है कि किसी भी पेशेंट्स के लिए, चाहे वो न्यूनेट हो, चाहे ओल्ड एज हो या क्रिटिकल केयर वाला पेशेंट हो या और कोई नॉर्मल पेशेंट हो, उसकी डोज सिलेक्शन कैसे करनी है और अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो कैसे करनी है. मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल में बी नेसेसरी फॉर सम ड्रग्स, जो कि हम बाद में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे मल्टी कंपार्टमेंट, बट द फंडामेंटल प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम. लेकिन बेसिक प्रिंसिपल उसमें भी यही सेम रहेगा. एज प्रिसीजन मेडिसिन एडवांसेस, फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स विल इंक्रीजिंगली बी इंटीग्रेटेड विद फार्माकोजीनोमिक डेटा. यानी जैसे जैसे अब ये प्रिसीजन मेडिसिन यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग ऑफ ड्रग डोजेज और फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई होते हैं, तो अब वहाँ पे फार्माकोजीनोमिक्स डेटा, बायोमार्कर्स, पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स टू इनेबल ट्रूली इंडिविजुअलाइज ड्रग थेरेपी दैट मैक्सिमाइज बेनिफिट वाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क. तो उसका फ़ायदा ये होगा इन तमाम मेडिसिन को और इन तमाम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना विद फार्माकोजीनोमिक, बायोमार्कर्स, पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स. इससे इंडिविजुअलाइज ड्रग थेरेपी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, उससे पेशेंट को हम मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं उस रिस्क का जो कि एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड है. तो इसके साथ ही ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया. थैंक यू वेरी मच.